Good morning, students of class 9th. This is your English teacher Rahul Soni, and today we will take fourth lesson of Beehive book. We have completed 3 chapters as well as 3 poems have been completed in our course of English for 9th class, and today a truly beautiful mind. That is the fourth lesson in Beehive. We will be reading about that chapter in this video. And before to start the text, I think I must intimate you what is there in this lesson. Actually, in this lesson, you will come to know about a man whose name is Albert Einstein, who was a great scientist on this earth, and recently he died. So this chapter have some additional information about Albert Einstein. Scientific terms have been explained in this chapter, so you might face some problem to understand what is described in this chapter, but still I will try my best to make you understand what is the theme, what is the main point, what is the plot of this lesson. So I think now we must start the chapter. So now I am going to start that lesson. Okay, now come to the book. So from here our chapter starts, a truly beautiful mind. Okay, what do you think of when you hear the word genius? जब genius word आप सुनते हो तो कैसा आप सोचते हो? Who is a genius? और genius कौन होता है? What qualities do you think a genius has? और एक genius जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर माइंड. ओके, वी shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in a quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ मैं कह सकते हैं कि थ्योरीज है साइंस की. फिजिक्स की थ्योरी है, वो फिजिक्स में उसने काफ़ी स्टडीज़ की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई है जो उसने फॉर्मूलेज दिए या कोई भी नई बात साइंस फिजिक्स के अंदर उसने जोड़ी, वो सब यहाँ पर है. हिज वर्क टुक अप ओनली a few pages in scientific journal but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and that transformed the name Einstein into a synonym of genius. 50 years after his death, उसकी डेथ के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीन. यहाँ पे रीन का मतलब होता है शासन करना. मरने के बाद भी आज वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज Albert Einstein was born on 14th of March 1879 in the German city of Ulm. Here he was born. Date and place is given here without any indication that he was destined for greatness. At that time there was no indication that one day he will become a great scientist. On the contrary, बल्कि दूसरी तरफ his mother थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि वह एक सनकी इंसान है. यहाँ पे फ्रीक जो वर्ड है इसका मतलब होता है सनकी. टू हर, उसकी माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनका जो सर था वो बहुत बड़ा था. यूजुअली जो होना चाहिए उससे काफ़ी बड़े साइज का सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का था. तो इस वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान थी इन सब चीज़ों को लेकर के. एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, वह बात बोलता नहीं था. व्हेन ही फाइनली लर्न टू स्पीक, और जब उसने आखिर में बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो हर चीज़ को वह 2 बार बोलता था. अटर्ड का मतलब होता है कहना. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आइंस्टाइन को नहीं पता था कि क्या करे विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके दोस्त, उसके साथी जो भी उसके घर के आसपास रहते थे
वो उसे ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत कम बोलता था, चुप रहता था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिज़िक्स टीचर से पता करें, वो ज़्यादा बता पाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, और मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियोस की जो है टाइमिंग छोटी करनी है ताकि ये इजीली आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। बट एक दिन मैं याद दिलाना, स्कूल खुलेगा तो ज़रूर आपको आइंस्टाइन के बारे में बताएंगे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो बेचारा अकेला ही खेल लेता था क्योंकि दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ओके, मच ऑफ द टाइम, काफ़ी समय तक अकेला खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे मशीन वाले खिलौने काफ़ी पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जब उसके घर में उसकी बहन पैदा हुई तो उसका नाम माजा था। ही इज सैड टू हैव सैड, तो उस ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अपने पेरेंट्स से, मम्मी ये सुंदर तो बहुत है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा था कि वो जो बहन उसकी जो है वो एक टॉय है, ना कि ह्यूमन बीइंग। तो कहने लग गया कि इसके मम्मी व्हील्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बताओ, इस तरह का दिमाग था उसका। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter, but because he will never make a success at anything. एक बार स्कूल के हेडमास्टर ने उसके पापा से कहा कि वह अपने जीवन में किस प्रोफेशन को चुनता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वह जिस भी प्रोफेशन में जाएगा वह कभी कामयाब ही नहीं, वह किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा उसके हेडमास्टर ने कहा उसकी हरकतों को देखते हुए। लेकिन एक एज ए टीचर कभी हमें किसी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है ना। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में उसने वायलिन लर्न कर रहा था, वो कैसे बजाते हैं। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो ये सब चीज़ें सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, यहाँ पे एमेच्योर का मतलब होता है कि मतलब कोई आदमी किसी काम को अपनी खुशी के लिए करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एमेच्योर। वायलिनिस्ट का मतलब होता है वायलिन बजाने वाला। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने इस गुण को पूरी जीवन भर अब मेंटेन रखा, मतलब वायलिन जो है वो बजाता रहा, उस काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था वो इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पुपिल, वह एक बुरा पुपिल नहीं था। पुपिल का मतलब होता है डिसिपल, स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, पढ़ने के लिए मुनिक गया, हाई स्कूल में। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर पहले ही उसकी फैमिली सेटल हो चुकी थी। व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उसने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। स्कूल के जो रूल्स थे वो उसको काफ़ी पसंद नहीं थे, उनसे वह हेट करता था। एंड ऑफन क्लास्ड, और अक्सर भिड़ जाता था विद हिज टीचर्स। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टफल्ड, स्टिफल का मतलब होता है जैसे दम घुट जाना, सफोकेटेड उसने फील किया 15 साल की उम्र में। देर, वहाँ पे, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और फिर उसने अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए उसने वो मुनीक में जो स्कूल था वो स्कूल ही आइंस्टाइन ने छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए और उसे रिलेटिव को छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबी चर्चा के बाद, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में उसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का सोचा। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक, जो मुनिक से कहीं ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करती थी, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने का सोचा, वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का सोचा।
आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा था वो, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिच की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाने की सोची, बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मोस्टिच। वायरलेस का मतलब होता है समुद्री घोड़े की जैसी मूछ, लेकिन साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके दैट अपील टू द यंग डैशिंग यंग मैन, जो उस आदमी के सामने अपील हुई, लेकिन और भी कुछ था जो उस इंसान ने उन साइंस के अलावा भी अपनी पर्सनल जीवन में कुछ और चीज़ों का सामना किया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। वायरलेस मोस्टिस का मतलब होता है घोड़े के जैसी मूछें। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 6 paragraph of this lesson, and I think this is enough for today. Rest of the passages will be discussed in next coming videos. Thank you. Have a good day.